है, उनके जो त्यौहार हैं होली या फिर दिवाली, आप देखते हो कि वो दूसरे कंट्रीज़ में भी उसी ज़ोरों शोर से मनाई जाती है, यानी उनके कल्चर्स को, उनके फेस्टिवल्स को दूसरे अडॉप्ट करना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में पीएम मोदी से। स्टार्ट करते हैं। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। महाराष्ट्र से श्वेता उमरे, आपसे निवेदन है कि कृपया अपने विचार प्रकट करें। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। A very frenetic morning to Honorable Prime Minister Sir, respected Minister Sir. This is Shweta Umre from Government Institute of Forensic Sciences, Rashtra Sant Tukadoji Maharaj University, Nagpur, Maharashtra. Today, I will be speaking on the topic connecting India economically, culturally, and geographically. Now, when I look at this topic, I can see two aspects. The first aspect is how do we connect India to itself. The second aspect is how do we connect India to other countries globally. So when I talk about the first aspect, I dearly feel that India is already a connected nation. Now how? NASA has reportedly stated that the sound of the rotation of Earth is Om. And we have been worshipping Om, we have been worshipping landscapes, rivers, lakes since ages now, which states that our culture is born out of the geography of our country. Moving ahead to how culture is connected to the economy. When I talk on this, how can I not talk about the heritage tourism that we have, about Char Dham, about Golden Temple, about Haji Ali Dargah, about the beautiful churches of Goa. This heritage tourism generates revenue for our nation, and this revenue helps us build a better, a stronger economy. And that we have a stronger economy now, it is possible for us to reach to the portions of the country that are in the most remote areas. And this would lead to not only literate individuals, but educated individuals. And educated individuals of this nation would arise and develop a better and stronger culture, would arise and take care of the geography of their nation. And when this would happen, our India would arise. Talking of geography, when I see that people who drink water in Bengal, it comes from the Himalayas. The people who experience rainfalls in Mumbai are the clouds that are coming from Gujarat. And we have the second largest network of roads in the world, thanks to the 3% taxpayers of this country. Ahead, I would like to state how India is getting connected to other countries globally. India has always been rich in cultivable land, rich in heritage, and rich is amongst all of you beautiful youth people of this country. This is the reason why countries like superpowers want to come to us and invest on our land. This does not only bring pride and respect to my country, it also generates a very strong economical relationship with countries that are more developed than ours. This is how economical bonds form between two countries, and this is how we start understanding each other's geography. And when economy and geography of two countries mix, there is an exchange of cultures. We adapt their culture, they adapt our culture. With this, I would like to state that the only thing that the youth of India can do is to strengthen this connection that already exists within and inter India.
How can we do this? We can do this by taking active participation and understanding what our responsibilities and our duties towards our country, our nation, our people are. And the day we realize our responsibilities, the day we start working hard, the face of this nation will change. And let's do this. Let's hold our hands, work even harder, and let's do what India was born to do, to build love, to build respect, and to generate peace. I would like to end my say with the quote. जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या ज़मीं क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा. With this I end my say. जय हिंद. थैंक यू जी जनाब, बहुत ही खूबसूरत एक नक्शा खींचा गया. मैं इसको ये कहूँगा कि एक मेन पॉइंट्स बहुत कम टाइम में हाईलाइट करके एक ऐसी पिक्चर खींची गई हिंदुस्तान की, ऐसा खूबसूरत नक्शा खींचा गया कि अगर कोई शख्स नहीं जानता, फ़र्ज़ करते हैं अगर कोई शख्स नहीं जानता हिंदुस्तान क्या है, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, इसके मॉरल क्या हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है क्या, ये क्यों इतना ख़ास है, मैं कहता हूँ कि इन 5 मिनट के अंदर वो कम से कम मेन चीज़ों को समझ जाएगा. वरना तो है तो बहुत कुछ, बोलने को तो बहुत कुछ है, बहुत इतिहास बहुत बड़ा है, कल्चर बहुत रिच है, बेशुमार चीज़ें हैं. लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम अगर इंट्रोडक्शन कहा जाए इस स्पीच को हिंदुस्तान का, तो कम नहीं होगा. बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने वो पॉइंट्स हाईलाइट्स किए हैं. कल्चर से एक साथ रहते हैं, लोग एक साथ हैं, और बड़ी ही खूबसूरती से मतलब है कि अमन, हमारा मज़हब, हमारा कंट्री हमें अमन सिखाता है. हमने दुनिया में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट किया किस खूबसूरती से, किस इमेज के साथ. तो मैं समझता हूँ कि ये 5 मिनट की वीडियो इंडिया का इंट्रोडक्शन समझ लो, एक तारुफ समझ लो दुनिया के लिए, तो उसमें बहुत खूबसूरत होगा ये, मैं जहाँ तक समझ. अच्छा, मैं थोड़ा सा सोचती थी इस बारे में कि ऐसा होना चाहिए, एक कंट्री को ऐसा होना चाहिए कि उसके कल्चर को दूसरे अपनाएं और वो दूसरे के कल्चर्स को अडॉप्ट करे और अपनाएं. लेकिन हमारे यहाँ मुझे ये देखने को इतना ज़्यादा नहीं मिलता कि हम दूसरों के कल्चर्स को अपना रहे हैं या दूसरों की तरह एंजॉय कर रहे हैं उनके त्योहारों को, उनकी चीज़ों को. जैसे कि इंडिया में हमें बड़ा देखने को मिलता है उनके जो त्यौहार हैं, होली या फिर दिवाली, आप देखते हो कि वो दूसरे कंट्रीज़ में भी उसी ज़ोरों शोर से मनाई जाती है. यानी उनके कल्चर्स को, उनके फेस्टिवल्स को दूसरे अडॉप्ट करना पसंद करते हैं. इसी तरह वो भी दूसरों के जो भी फेस्टिवल्स हैं, जो भी वो हैं, उनके साथ शरीक होते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं. और कोई भी ऐसा इंसान जो गैर मुल्की हो, जो इंडिया से ना हो और वो इंडिया घूमने आए, तो उसको बड़ी अपनायत फील होती है. उसे कभी भी बुरा फील नहीं होता, उसको कभी भी अकेलापन फील नहीं होता, उसको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी ऐसे प्लेस पे हूँ जो मेरी नहीं है, या उसे अपनी कंट्री की याद नहीं आती. इन शॉर्ट ये है कि वो वहाँ पे घुल जाता है, मिल जाता है और गुम हो जाता है. अच्छा, ये बात तो 1000 बार वीडियो में हमने कही होगी और शायद 1000 वीडियोज़ में देखी भी होगी और सुनी भी होगी, और मुझे तो हिस्स हो चुकी है कि कल्चर्स बहुत रिच हैं, फेस्टिवल्स, कई फेस्टिवल्स हैं. आपने देखा है लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, कलरफुल त्यौहार हैं उनकी. अभी वीडियो में बताया गया कि 50 मील पर तो भाषाएं चेंज हो जाती हैं, कल्चर चेंज हो जाते हैं. और एक वीडियो और भी मुझे याद आ रही है कि हम ये समझते थे कि हिंदी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि बाद में हमें पता चला कि बहुत सारे तो ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे तो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हिंदी ना बोली जाती है, ना जानी जाती है. वहाँ पे वो अपनी ही मादरी जो ज़बान है वो बोलते हैं. 1600 भाषाएँ बोली जाती हैं. हाँ, वो तो बोली जाती है. और 22 लैंग्वेज मेरे ख्याल में शायद वो हैं सरकारी है, ज़बानें हैं. लेकिन और इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है. हिंदी हमें ये गुमान था, मुझे तो यही गुमान था, जो मैं अपनी बात करूँ कि हिंदी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, नेशनल लैंग्वेज होगी. लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज तो 22 है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है. ठीक है. और दूसरी बात, ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान जो हैरत अंगेज़ तौर पर मुझे पता चला वो इंग्लिश है, जबकि हिंदी नहीं है. और हिंदी बहुत सारे लोग वहाँ पे अंडरस्टूड भी नहीं करते. और फिर उर्दू के बारे में हमें ये झटका लगा कि उर्दू वहाँ पे भी बोली जाती है, उर्दू वहाँ पे भी समझी जाती है, बाकायदा कोर्स का हिस्सा है उर्दू. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कोई और कंट्री रकबे के लिहाज से भले कितना बड़ा हो. एक बात तो कह सकती हो इस स्पीच के बाद और दूसरी वीडियोस देखने के बाद, जो मैंने तज्जिया निकाला है
कि चाइना की बात करें, चाइना रकबे से बड़ा है, तो कोई कंट्री भले रकबे के लिहाज से कितना भी बड़ा हो इंडिया से, लेकिन इंडिया के जो तर्ज तहजीब है, इंडिया की जो हिस्ट्री है, इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया में बहुत कुछ ऐसा है जो इंडिया को बहुत बड़ा बनाता है और इंडिया को कोई दूसरा कंट्री कॉम्पिटेट नहीं कर सकता उस तरीके से। जैसे एस्पेक्ट की बात हो रही थी ना, तो मैं यही कहूँगी अगर उस एस्पेक्ट से देखें तो इंडिया बहुत बड़ा है। शायद इस दुनिया के जितने कंट्रीज़ हैं उनमें अगर मैं बात करूँ, मैं अपना ओपिनियन रखूँ, तो मुझे इंडिया सबसे बड़ा दिखता है, उसकी छवि बहुत बड़ी दिखती है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें होने की वजह से, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री होने की वजह से, बहुत ज़्यादा कल्चर होने की वजह से, बहुत ज़्यादा ब्यूटी होने की वजह से टूरिज़म बहुत ज़्यादा है। फिर टूरिज़म की वजह से इकोनॉमिक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आला है, लोग बहुत हैं, आबादी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है और हो भी रही हैं। आपके पास अगर एक पॉपुलेशन होती है ना, पॉपुलेशन अगर आपका दिमाग क्या होता है, तो मैं समझता हूँ कि जिस देश की आबादी ज़्यादा हो, पॉपुलेशन जिस देश की आबादी पॉपुलेशन ज़्यादा हो, मुझे हंसी आ रही है बोलने में। क्या कॉमेडी शो चल रहा है, अजीब तरीके से बोलते हैं। जिस देश में लोग ज़्यादा हों तो वो एक तरह से एक नेगेटिव पॉइंट में जाता है। लेकिन अगर आपके पास दिमाग है, अगर आपके पास अक्ल है, तो आप उसी आबादी को पावर बना सकते हो। वही आबादी आपके लिए एक विल पावर बन सकती है, आपके देश को बहुत आगे ले जा सकती है। अच्छा, एक बहुत अजीब सा मौजूदा लगता है मुझे। हमारे यहाँ 4-5 कास्ट हैं, या फिर ये कह लें 4-5 सूबे हैं जिसमें हम झड़पें होती रहती हैं, सिटीज़ टू सिटीज़ लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लाहौर वाला कहता है कराची वाला अच्छा नहीं है, कराची वाला कहता है लाहौर वाला अच्छा नहीं है, तुम तो मेरे पाँव की जूती के बराबर। मतलब हमारे अंदर नफसा नफसी बहुत है। लेकिन मैं हैरान होती हूँ उन लोगों को देखकर, कोई मिरेकल है, कोई मैजिक है, क्या चीज़ है ऐसी जिसने इन सबको जोड़ा हुआ है। एक तो कंट्री के अंदर वाले लोग भी यकजा रहते हैं, मुत्तहद रहते हैं यूनिटी के साथ, और फिर बड़े मज़े की बात आप ये देखिए ग्लोबली भी सब कनेक्टेड है। यानी सारे कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो इनसे मिलना जुलना, इनके साथ रहना, इनसे बातचीत करना, इनकी जगहों को देखना, इनको समझना, इनके त्योहारों को समझना, इनके मज़हब को जानना इंटरेस्ट रखते हैं। यानी कि मुझे ऐसा लगता है, आपसे कह रहे हैं पॉपुलेशन का होना नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद इनकी ये अपनायत ही है जिसने इनको बड़ा पॉजिटिव रखा है और लोगों से जोड़ कर रखा है। देखिए, जो मेन चीज़ होती है वो होता है एक लफ्ज़। अगर आप सब किसी एक लफ्ज़ की वजह से जुड़ते हैं तो वो लफ्ज़ है इंडिया। अगर हर शख्स अपने आप को इंडियन मानेगा तो जुड़ेगा। कुछ भी हो, जितने भी प्रॉब्लम, जब बात आ जाए देश पे तो सब एक है। तो कोई एक चीज़, एक अम्ब्रेला, कोई एक छत, कोई एक चीज़ जो आपको जोड़े, तो आप यूनिटी में, तो आपके अंदर यूनिटी होती है। जब आप अपने आप को अपने देश का एक, अपने वतन का एक मानेंगे, तभी आप एक उस छतरी के नीचे आएंगे। जब आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली एक दूसरे से एक रिश्ता महसूस करेंगे। अच्छा, आप इंडियन हो, अच्छा मैं इंडियन हूँ, अमेरिका में बैठे हो आप दोनों, भले। अच्छा आप भी इंडियन हो, कहाँ से, इधर से उधर से, तो आपके अंदर यूनिटी, आपके अंदर प्यार, आपके अंदर मोहब्बत आ ही जाता है। तो एक बहुत खूबसूरत वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत अल्फाज से इंडिया की बहुत ही खूबसूरत छवि पेश की गई। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।